We will discuss about torque experienced by a rectangular current loop in a magnetic field. Here, this is a rectangular current loop. Here, in the diagram, this is a rectangular current loop carrying current I in the clockwise direction. ये I current clockwise direction में flow हो रही है, ऐसा diagram mention किया. Vector M is the normal vector of plane of loop. Angle between magnetic field vector B and normal of the plane of loop is theta. वेक्टर B और वेक्टर M इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है. We are aware about whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. Here, we are consider a rectangular current loop. Means there are four current carrying conductors. Very first, if we place a current carrying conductor in a magnetic field, it experiences a force, and that force is given by F equal to I L cross B. Now, force experienced by the first arm, which is A, B, C, D. The force experienced by the arm AB, say it is F1. Then, with the help of this above formula, F1 will be evaluated as F1 equal to I L cross B. F1 equal to I L cross B. But F1 equal to I L B sin theta. लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. अगर डायग्राम कंसीडर करो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और कंडक्टर में करंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो दोनों बीच का एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90. तो ये बन जाएगा F1 इक्वल टू आई एल बी. दिस इज इक्वेशन 1. ये फोर्स F1 इक्वल टू आई एल बी. Force experienced by the arm AB in the presence of magnetic field B is calculated here as ILB. Direction. The direction of this field, this force will be given by the Fleming's left hand rule. ये लेफ्ट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं एंड first finger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, then thumb gives the direction of force. ये ऐसा हुआ, ये direction of current, ये magnetic field और ये force. तो here thumb is in the direction of perpendicular to the board directed inward, and therefore this force F1 will have direction perpendicular to the board directed inward. In the same way, the force acting on the arm CD in this arm will also be given as F2 equal to I L cross B. करंट सेम है, लेंथ भी, वो रेक्टेंगुलर लूप है तो लेंथ भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, तो F2 इक्वल टू अगेन आई एल बी. इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से आप दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल. तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और थंब जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड. तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब इस लूप पर जो फोर्सेज हैं
वो F1 और F2 AB और CD ये जो आर्म है इन पर दो फोर्सेज हैं F1 और F2 और these two forces are equal in magnitude ILB and have opposite direction. One is along inward, another one is along outward. The forces experienced by the arm AC and BD are F3 and F4. These two forces F3 and F4 are equal in magnitude as in previous case, opposite in direction. F3 and F4 are opposite in direction. F4 is upward and F3 is downward. But one thing is not common here, which is these two forces F3 and F4 are acting along the same line of action. एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर ये F3 और F4 हैं, तो इसलिए इनका जो रिजल्टेंट होगा that will be 0, means these two forces F3 and F4 being equal in magnitude, opposite in direction and having same line of action, they will cancel out each other. And in this way, net force on the loop will be F1 and F2. In total, if we calculate the total force on the loop, it will be 0. F1 F2 को कैंसिल कर देगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के कारण. F3 और F4 ये सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है तो 0 मैग्नीट्यूड का फोर्स प्रोड्यूस करेगा. तो नेट फोर्स जो होगा इस पर वो 0 होगा और इसलिए कोई ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ नहीं होगा. लेकिन क्योंकि ये F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर हैं, एंड इन दिस वे दे विल प्रोड्यूस ए कपल, एंड विद द हेल्प ऑफ couple formed by the two forces F1 and F2, they have a tendency to rotate the coil about its axis or rotate the loop in the magnetic field if it is free to do so. Magnitude of torque. अब ये जो फोर्सेज हैं F1, F2, F3, F4 इनको हमने डिटेल स्टडी कर लिया. तो अब अपने को टॉर्क फाइंड करना है. टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू लीवर आर. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू लीवर आर. अब ये कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो ये हो जाएगा. अब इसके लिए हम इसको अलग से रिजॉल्व करते हैं. इस लीवर आर्म को भी समझने के लिए ये जो ए बी आर्म है इसको हम अलग से ड्रा करते हैं और फिर रिजॉल्व करते हैं. तो ये फार्मूला अब आप टॉर्क के लिए समझ गए, आइदर फोर्स इनटू लीवर आर. अब इस आर्म AC को हमने यहाँ अलग से रिजॉल्व किया. तो ये आर्म AC है इस डायरेक्शन, ये देखो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन ऑफ लूप, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. इसको हमने रिजॉल्व किया. ये जो साइड है इसकी उसको हमने कंसीडर किया कि ये B लेंथ की है और ये A लेंथ की है. तो ये जो साइड है वो A लेंथ की कंसीडर कर लिया और ये जो साइड है उसे B लेंथ का. तो ये B को रिजॉल्व किया तो आर्म AN ये हो जाएगा B cos थीटा और ये CN ये हो जाएगा B sin थीटा. अब ये हो जाएगी लीवर आर. वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा टॉर्क के लिए आइदर फोर्स इनटू लीवर आर. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू लीवर आर. नाउ टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स, तो ILB ये आइदर फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था F1 F2 का. ILB या IL क्रॉस B जैसा लिखो, उसके टर्म में लिखेंगे वेक्टर टर्म में, तो IL क्रॉस B इंटू DN. तो ये हो जाएगा ये इंटू CN, ये CN लीवर आर्म. टाउ इक्वल टू ILB इंटू B साइन थीटा. अब ये L इसको हमने लेंथ जो है वो A ना लेकर L कंसीडर कर रखा है. ILB लिख रखा है, तो L इंटू B ये लेंथ इंटू ब्रेथ माना है. तो यही काम यहाँ कर लें. तो टाउ इक्वल टू I
बी एल बी साइन थीटा, और ये L इंटू बी ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये बन जाएगा टाउ इक्वल टू आई लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया बी साइन थीटा। ये हो जाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट लूप, और ये जो ए है ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ लूप लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा ये कंसीडर हुआ। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म। इफ वी राइट द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म देन टाउ इक्वल टू आई, क्योंकि जो करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। ए क्या है, तो एरिया वेक्टर इंटू बी। इफ लूप हैज n टर्न्स, अब अगर लूप के पास n टर्न्स हैं तो इसके लिए जो टॉर्क आएगा दैट विल बी इक्वल टू टाउ इक्वल टू, या टाउ सफिक्स n इक्वल टू टाउ फॉर n टर्न्स, टॉर्क फॉर n टर्न्स, टाउ इक्वल टू n आई ए बी साइन थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ऑफ n टर्न्स। ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा टॉर्क के लिए। एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं एन आई ए। इस एन आई ए को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। इसको अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां यूज हो जाता है। तो आई इंटू ए ये हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सिंगल लूप, n टर्न्स है तो एन आई ए, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द n टर्न्स, और यही हो जाएगा m। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो टाउ n इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो m b साइन थीटा, और टाउ n इक्वल टू m क्रॉस b। जो मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक, चूंकि मैग्नेट वो डाइपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, यूनिपोल के फॉर्म में नहीं, तो या मोनोपोल के फॉर्म में नहीं होता, तो डाइपोल होता है। इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को सिंपली बोल देते हैं, तो वो बनता है, वो है m। नाउ सम स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द rectangular current loop placed in a magnetic field. First, if the current carrying loop or coil is aligned in such a way that plane of the loop or coil is parallel to the direction of magnetic field. जो प्लेन ऑफ लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो प्लेन ऑफ लूप ये हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा that will be equal to theta equal to 90 डिग्री, क्योंकि वो थीटा हमने, और आपने देखा होगा ऐसे डिजाइन किया था, तो ये यूनिट वेक्टर था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये थीटा था। अब अगर ये ऐसा हो जाए कि n और ये b मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ लूप ये दोनों पैरेलल हो जाए, तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, और इस केस में जो टॉर्क होगा दैट विल बी टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90। हियर टॉर्क विल बी एन आई ए बी, और ये हो जाएगा बीइंग साइन 91, इट विल बी मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द लूप, और इसी कंडीशन को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब लूप और कॉइल पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही हो, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, मैक्सिमम टॉर्क वहां मिलता है। सेकेंड केस है, इफ करंट कैरिंग लूप और कॉइल is aligned in such a way that the plane of the coil is perpendicular to the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल ये परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में ये जो थीटा होगा वो
0 डिग्री हो जाए। ये आपको यहाँ वाइस वर्सा कंट्रास्ट लग रहा होगा, लेकिन वो ऐसा एस इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्लेन ऑफ लूप के एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल ऑफ प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थीटा 0 हो जाएगा। और इस केस में जो टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू NIAB sin 0, बीइंग sin 0 torque experienced by the loop becomes 0, and in such a case it may be stated that the loop will be in the position of equilibrium। यहाँ 0 टॉर्क की कंडीशन होगी और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है कॉइल की या रेक्टेंगुलर लूप की।